the other guys, जो मेरा friend था, he was in Peshawar board, तो उनका जो exam था वो अपने respective classroom में था. So I remember these two paths going away from one another, दो रास्ते अलग हुए, and the irony of life is कि एक रास्ता वाकई में ज़िंदगी की तरफ जाता था और दूसरा मौत की तरफ था. लेकिन वो बच्चे जो 8th 9th में थे, उनके लिए mental trauma बहुत ज़्यादा severe था. And I remember then the college administration changing the classrooms for children so that उनके जो mental associations हैं वो break down हो. पाकिस्तान में एक इंसान की कीमत हम 2 लाख रुपए लगाते थे. I remember when people used to die, तो हमारी जो गवर्नमेंट्स होती थी वो चेक्स प्रेजेंट करती थी लोगों को जो अफेक्टेड लोग होते थे. तो जिंदगी की कीमत जो थी वो बहुत कम लगती थी. My name is Akif Azeem, a terrorism survivor, now turned into a mental health professional, dealing with the survivors of traumas that are in Pakistan, and in pursuit of creating Pakistan's first facility that specifically deals with mental health traumas. In retrospect, I want to do something for the people of Pakistan, the survivors of terrorism. Over 80,000 people affected in terrorism, and those 80,000 people have left behind 80,000 families. So catering to their wounds, that's my purpose, and that's something that I really want to do. So, well, just like any other student, मैं भी एक federal board का एक student था. Going about my life as one student can go about, being reckless. जिस तरह आम जो है वो teenager 16-17 साल के बच्चे होते हैं. I was just the same. Luckily, कहूँ या unluckily कहूँ, there was one particular day that was about to change my life's dynamic and my lifescape altogether. And I think that day everybody dreads. For many people, it's as near as we can go to the judgment day. For people like me, it's more or less the day represents a transition, and the transition is in the sense that it was the darkest of times that I saw. लेकिन फिर उस अंधेरे के बाद एक रोशनी का सफ़र जिसको तय करना था, उस सफ़र के रास्ते पर निकले और निकलने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह I found my ways to help people. I found my way to make sure कि जो पाकिस्तान के अंदर मुझ जैसी यूथ है जो बगैर किसी एम के ड्रिफ्ट करती रहती है, उस यूथ को संभालूं, उनको एक रास्ता बताऊं और उससे आगे जाकर I think most importantly that serves a very high purpose in my life is कि अपने उस दोस्त की जो इस इंसिडेंट में शहीद हुआ, उसकी मेमोरी को जो है वो जिंदा रखने के लिए काम करूं पाकिस्तान के अंदर. The day that I'm talking about is of course December 16, 2014, where 7 gunmen stormed the school building of the Honorable Vic School and College Peshawar, leading up to 150 deaths, 132 of which were children. तो उस हादसे में अपने 17 दोस्तों को खोया. 17 में से 4 ऐसे थे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो मेरा ग्रुप था. तो उन चारों को कब्र में डालने के बाद एक सफ़र शुरू किया जिसमें उन चारों की याद को दिल में लिए I went forward with my life, and the transition from what I was to where I am began. So I think मेरे लिए शुरुआत होती है सुबह 8 बजे, जिस वक्त मैं कॉलेज की बिल्डिंग पर पहुंचता हूँ और my father drops me off at the college building, and like he gets into a fight with the guards, which were usually like 25 guards जो हैं वो वहाँ पर होते थे. But that day the back wall was left unchecked. तो parents ने सुबह पूछा भी because we had a security threat alert prior to the attack. So the parents, like मेरे वालिद के साथ कुछ और भी parents थे, they were arguing at the gate. तो उनके इस आर्ग्यूमेंट के दौरान ही I found my best friend, and हम दोनों जो हैं वो निकल गए एग्ज़ाम हॉल की तरफ. हमारा उस दिन केमिस्ट्री का पेपर था. तो both of us we went about our business, and I was a very reckless student to be fair back in those days. तो I remember him asking me कि यार पास हो जाओगे, like this quirk कि यार जैसे भी I'll pass the exam. और 8:02 पर जो है वो एक बेल होती है और ऑडिटोरियम जो स्कूल हॉल था ऊपर, हमारा एग्ज़ाम जो है वो वहाँ पर था. और the other guys, जो मेरा फ्रेंड था, he was in पेशावर बोर्ड,
तो उनका जो एग्ज़ाम था वो अपने रिस्पेक्टिव क्लासरूम में था. तो आई रिमेंबर दीज टू paths going away from one another. दो रास्ते अलग हुए. And the irony of life is कि एक रास्ता वाकई में ज़िंदगी की तरफ जाता था और दूसरा मौत की तरफ था. And I think that became quite a highlight for me in the later part of my discovery to myself. I remember वो अपने रूम में चला गया, मैं अपने एग्जाम हॉल में आ गया और पेपर स्टार्ट किया. Round about at 9:30 I felt the urge to go to the washroom. So मैंने अपने टीचर्स जो थे वहाँ एग्जाम हॉल में उनसे रिक्वेस्ट की कि if I would go. तो of course like the teacher protested कि यार नहीं अभी तो half time भी नहीं हुआ, you know how can we let you go. So after a lot of talk and a lot of me trying to pull the chains on my teachers, so at around 10:25 at the half time mark they let me out. तो मैं अपने एग्जाम हॉल से उतर कर नीचे आया, and that's when I started hearing gunfire. This is around 10:30. So gunfire पेशावर के अंदर कोई नई बात नहीं थी. To be fair, it was वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो गोलियों की आवाज़ के अंदर होता है. So it was pretty normal to hear those noises. लेकिन the more they started coming closer and closer, the more I started getting worried कि यार this doesn't seem to be something normal. And I come out of the exam hall or washroom से मैं जब बाहर निकलता हूँ तो around about 40 to 50 feet के फासले पर there's an attacker standing with an AK-47 and he's wearing this rucksack backpack, camouflage vest उसने पहनी हुई है, and he cocks up the gun and fires 7 shots towards me. 3 hit in the front grill जहाँ मैं जिस जगह पे खड़ा था उसमें और 4 वो पीछे की दीवार में लग जाती हैं because he was running. So the spray pattern of the gun, like the bullets were scattered, they weren't concentrated on a particular space. So I escaped those 7 bullets unharmed. तो वहाँ से जब वो अटैक हुआ जाहिर बात है एक बच्चे को, एक 18 साल के बच्चे को ये सोच आती है कि यार ये 7 गोलियाँ मुझ पे क्यों चली हैं. So immediately in the minute that followed, I just thought to myself that I need to recollect, because at that point you did not have enough time to recollect yourself and find your feet, and you had to be very quick. So I remember going towards the classroom. एक 7th का classroom था, तो वहाँ पे 24 बच्चे बैठे थे और उनके साथ एक फीमेल टीचर थी. All panicked because they heard the gunfire और उसी क्लास की दीवार में गोलियाँ वो लगी थी बैक साइड से. So they started asking me questions. I did not have any information at that point. So I sat down with those children, barricaded the doors because I knew that they were terrorists and they were firing. So of course it's a problem. So I locked up the doors, brought the tables towards the door और barricade किया कमरे को मैं जिस तरह भी कर सकता था. I remember telling the kids to sit in the middle of the classroom और उनके टेबल्स रखे और उनके बैग्स को उनके सामने रखा कि अगर बुलेट्स स्प्रे होती हुई अंदर आती हैं स्ट्रे बुलेट्स तो डैमेज मिनिमाइज हो सके. All of this is going on in around 10:45. I remember that my brother is in the auditorium और इतनी देर में मुझे ये भी एहसास होता है कि ऑडिटोरियम से ही जो फायरिंग की आवाज़ें हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है इस वक्त. तो I just look up towards the heaven and I say, okay God, I can't reach him in all of this. So I send a prayer towards him and then I just sat. तो तकरीबन इसी तरह 11 बज जाते हैं, 11:10 का टाइम होता है, and all of a sudden the front door of the auditorium, the left side, it opens up. And when those two, there were 3 doors of the auditorium, 2 of which opened up. तो उन दोनों दरवाज़ों में से कुछ बच्चे बाहर निकले and I saw them from the window where I was sitting. तो उन बच्चों को वहाँ से देखा and I realized कि someone needs to go to their aid because I couldn't let them die in the halls. So I went out, opened up the doors and tried to rescue as many as possible, to be honest. The kids that came in, this scene was straight out of a horror movie, to be honest. Kids dragging their limbs, अपने आप को खींच रहे हैं, वहाँ से कॉरिडोर्स में से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं. तो एक बड़ी अजीब सी कैफियत थी उस टाइम पे बच्चों की, बिकॉज अगेन वो प्रेजर्वेशन ऑफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे थे. किसी की टांग में गोली लगी है, किसी की बाजू में गोली लगी है, सो देम ड्रैगिंग देयर लिम्स एंड कमिंग आउट. तो एक बड़ा डिफिकल्ट सा सीन था कॉम्प्रिहेंड करने के लिए. एंड आई रिमेंबर रेस्क्यूइंग अराउंड 17 to 19 kids. All of them had either major or minor injuries, shots, body shots थे या arm या leg wounds थे.
तो उन तमाम बच्चों को लाके अपनी क्लास में बिठाया। फिर लाइक मी बीइंग द सीनियर, आई वाज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तो वी वर फेमिलियर विद द फर्स्ट एड रूल्स एज वेल। तो जिस हद तक मुमकिन था, जिस हद तक पॉसिबल था, उन बच्चों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की कोशिश की। जाहिर बात है आप ऐसे मौके पे कुछ ज़्यादा कर तो नहीं सकते, सो आई जस्ट saw their wounds, cleaned them up if there were some wounds that I thought were like they needed cleaning. तो इसी तरह करते करते like I just bandaged as many children as possible, shirt में, muffler में, जो कुछ भी मेरे पास वक्त अवेलेबल था, and then we sat down once more. तकरीबन इसी तरह बैठे बैठे और गोलियों की आवाज़ें सुनते सुनते हमें it became like 11:30 or 11:45 maybe. So that's when we heard like another thud onto the door. तो जब वो किसी के गिरने की आवाज़ आई दरवाजे पर, तो for 2 minutes हम सबको ऐसा लगा कि शायद there's an attacker outside, and now as we open the door, so it's gonna be it. तो उस दरवाजे की तरफ तकरीबन 1-2 मिनट के लिए देखा, and then I found the courage. मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा है। तो I opened up the door, and this scene was really the game changer for me because that's from where I found my strength. So एक 8th class का बच्चा है, 13-14 साल का, and he's shot in his body 7 times, and that kid is in no condition to speak. He's in and out of consciousness. तो जैसे ही वो उसको थोड़ा सा वो कॉन्शियस होता है तो वो एक जुमला बोलता है, उसकी बाजू जो है वो फंसी हुई थी डोर नॉब के अंदर, तो होश में आते साथ ही वो एक जुमला बोलता है, काश मुझे भी कोई बचा लेता। Now a 13-14-year-old kid is looking up towards your face, you being the senior and an 18-year-old, he looks up towards you और वो आपको जुमला बोलता है कि काश मुझे भी कोई बचा लेता। तो उस जुमले ने मेरे अंदर के एक इंसान को किसी तरीके से झंझोड़ा, और जब वो मेरे सामने आया तो उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, बिकॉज दिस कंडीशन वाज रियली वर्स। सो आई पिक्ड हिम अप, उसे बाजू में उठाया और क्लास के अंदर लेकर आया। उसकी इंजरीज को देखा, ही वाज शॉट 3 times in his face, and उसका मुंह completely blast हुआ था, and one bullet had pierced through his jaw and went down into his neck. तो वो गोली वो जब सांस लेता था तो वो उसके विंड पाइप के साथ जो है वो टच करती थी और उसको सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो आई रिमेंबर हियरिंग दिस नॉइज, और वो आवाज़ बड़ी डेंजरस सी थी, बिकॉज जब वो पाइप के अगेंस्ट कोई चीज़ प्रेस कर रही है, इट्स अ वेरी डेंजरस नॉइज। सो आई रिमेंबर वो जब आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो वो ऑलरेडी उसकी जो स्किन थी यहाँ से नेक की वो कटी हुई थी और वो ही वाज ब्लीडिंग। सो जस्ट ऑन एन इंट्यूशन आई सेड ओके, लाइक इफ दिस गाय नीड्स टू सर्वाइव, इफ दिस किड नीड्स टू सर्वाइव, तो इसकी वेंट पाइप का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो आई रिमेंबर लाइक पिकिंग अप लाइक अ पेंसिल शार्पनर, और उसको जो उसका जो ब्लेड था, आई टुक दैट आउट एंड ओपनड अप द वुंड दैट वाज ऑलरेडी देयर। तो उसको इंसेशन लगाकर वो जो बुलेट थी उसको निकाला और उस बच्चे की जो गर्दन थी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके, तो आई लाइक bandaged him up and sat down with him because he was losing blood. And at that point I thought कि यार like this is not, he's not gonna make it. इतनी देर में we learned through the people who were outside that it was communicated to us that the SSG has landed, but they are unable to come towards us because there is an attacker standing right outside the door. तो हमारे क्लासरूम से तकरीबन कोई 10 से 12 फुट की दूरी पे वो अटैकर जो है वो मौजूद था। तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, जाहिर बात है मी बीइंग द सीनियर, अब बच्चों को आप एक बच्चों को स्ट्रेंथ ही दे सकते हैं। So I remember some very funny moments that occurred in that time, where this kid walks up to me, like everybody's like hunched down, वो अपने घुटनों के अंदर अपना सर देकर, तो they were like all securing their heads from stray bullets. So this kid walks up to me और वो मेरी टांग खींचकर मुझे कहता है भाई मैं मरना नहीं चाहता। तो I looked up at him because again वो बड़ा एक difficult सा moment था। तो मैंने बोला यार nobody wants to die over here and inshallah we're gonna make it out. So he just looked up at me, laughed and said भाई अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। So I looked back at him and I smiled and I said हाँ मैं तुम्हें 3 बच्चों का बाप नजर आ रहा हूँ यहाँ पे। And this light moment that I shared sort of calmed me down कि इससे आगे जो होने जा रहा है उसके लिए it provided me with some sort of grip, I would say. And इतनी देर में we heard the news that the SSG is about to engage that terrorist, so we need to steer clear from the doors and windows. तो बच्चों को क्लास के सेंटर में concentrate किया, खुद भी वहीं दरवाजे के साथ कॉर्नर पे दीवार के साथ बैठा, और इतनी देर में 10-15 मिनट के बाद बहुत तेज़ एक
गन बैटल शुरू हुई जो 10 से 12 मिनट तक चली. There were grenades lobbed, there were bullets, and 10-15 मिनट सिवाय फायरिंग की और बॉम्ब्स की आवाज़ों के हमें कुछ नहीं सुना. 15 minutes later, then the army came in and they told us that they've gunned down the terrorists, and now that we are safe to go outside. So then उन्होंने हमारा एक पैसेज बनाया और हम बैक डोर से यूनिवर्सिटी ये कॉलेज का जो दरवाज़ा था उससे निकले, and we exited towards the back end of द कॉलेज जहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क था डिफेंस का. तो वहाँ पे जितने भी इंजर्ड सर्वाइवर्स जो भी बच्चे मौजूद थे कॉलेज के अंदर, उनको आर्मी जो है वो वहाँ बैक उस पार्क में गैदर कर रही थी. तो वहाँ आने के बाद अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, अपने टीचर्स को देखा, दोस्त वर इंजर्ड. तो उस वक्त कोई भी बच्चा शायद अपने टीचर्स को या अपने दोस्तों को जब वो इंजर्ड देखता है ना तो ही बिकम सॉर्ट ऑफ नम. और मेरी भी कैफियत इसी तरह की थी बिकॉज इट वॉज टू मच टू प्रोसेस एट दैट पॉइंट. तो इतनी देर में एक टीचर मेरे सामने आए और मैंने उनसे उनका फ़ोन मांगा बिकॉज आई वांटेड टू नो वेयर माय ब्रदर वाज बिकॉज एट दैट पॉइंट आई हैड नो आइडिया. तो जब मैंने घर फ़ोन किया तो लकीली इट वाज माय ब्रदर हु पिक्ड अप द फोन एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैड मेड इट आउट बाय 11 o'clock एंड ही वाज बैक इनसाइड द हाउस. तो उसकी ये बात सुनने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई अपने दो पैरों पे घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है. Like from there on, I just started walking. I remember I walked like 1.5 kilometers on the roads, all bloodied up. और कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा था इस पूरे प्रोसेस के दौरान कि जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है. And उसी numbness की हालत में I remember walking all this place and this guy stops up और वो मुझे देखता है, मेरी यूनिफॉर्म देखता है और देखने के बाद मुझे कहता है कि where do you live? तो वो मुझे बाइक पे बिठाता है, मैं उसे अपना एड्रेस बताता हूँ और वो मुझे मेरे एरिया में ड्रॉप करता है. सो व्हेन आई सॉ द डोर ऑफ माय हाउस, दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ मैं ब्रेक हुआ कि यार इन दोज 3-4 आवर्स जो मैंने वहाँ कॉलेज के अंदर गुजारे थे, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू कम आउट इंटैक्ट एंड अलाइव. तो जब वो दरवाज़ा देखा तो लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इट डॉन्ड ऑन मी कि क्या हुआ है. एंड दैट्स व्हेन आई ब्रोक इनटू टीयर्स. So my mother came up, my father came up. My father started kissing the blood because मेरी body के ऊपर हर जगह blood लगा हुआ था. So my father started kissing that blood कि पता नहीं किस बच्चे का, किस शहीद बच्चे का ये खून है. So when this happened, immediately फिर मुझे ये याद आया कि यार दोस्त तो मुझे मिले ही नहीं और नज़र ही नहीं आए. So I went to the washroom, cleaned myself up, and I went to CMH Peshawar. This is where like the life turned on its head when I went into CMH Peshawar. So दरवाजे के ऊपर 2 lists लगी हुई थी. On the left it read injured and on the right it read martyred and deceased. तो जो लेफ्ट की लिस्ट थी उसमें अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया. It was a long लिस्ट, लेकिन वहाँ चंद दोस्तों के नामों के अलावा मुझे नाम नज़र नहीं आए. तो भारी दिल के साथ जब राइट साइड की लिस्ट को देखना शुरू किया तो उसके बाद ये के बाद दी ग्रेव में कुछ दोस्तों के नाम नज़र आए जो उस वक्त तक कंफर्म हो चुके थे. तो फिर उसके बाद अपने दोस्तों की बॉडीज़ को पहचानना था, देखना था, कि आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन है. सो आई रिमेंबर व्हेन वी टोल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन CMH की कि ये दोस्त हैं, वी आर हियर टू सी देयर बॉडीज़. तो दे टुक अस टू दिस बिग हॉल जहाँ पे लाइक देयर वर बॉडीज़ ऑल अक्रॉस द रूम. तो मैं कॉलेज के अंदर जो एक आई वाज आल्सो द मीडिया हेड फॉर द कॉलेज. अभी रिसेंटली उसी टाइम पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी. तो आई वाज टेकिंग पिक्चर्स फॉर द स्पोर्ट्स गाला दैट वाज जस्ट कंक्लूडेड 3 days प्रायर टू द इंसिडेंट. तो उन बच्चों ने की तस्वीरें मेरे पास थी, सब बच्चों के, उनके से कई के मैसेजेस भी पड़े हुए थे कि भाई हमारी पिक्चर्स भेज दें. सो आई रिमेंबर व्हेन वी वेंट इन तो द नर्स दैट वाज स्टैंडिंग देयर शी आस्क्ड अस टू लाइक वो कफन के अंदर बच्चों को उन्होंने लिटाया हुआ था. तो वी हैड टू लिफ्ट अप द क्लॉथ एंड उसमें बच्चे शक्ल देखना नीचे के कौन है और फिर उसके बाद वी हैड टू पुट इट बैक. तो 2 से 3 बच्चों के ऊपर से जब मैंने वो चादर उठाई और उनके फेसेस देखे तो वी लॉस्ट स्ट्रेंथ कि यार इसमें अपने दोस्तों को हम कैसे ढूंढें. तो वी ब्रोक डाउन एंड आई कुड नॉट सी माई बेस्ट फ्रेंड्स फेस बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा दैट आई वाज कैरिंग इन दैट मोमेंट. तो वहीं पे बेहोश हुआ और उसके बाद आई रिमेंबर वॉकिंग अप ऑन द बेड. तकरीबन 8 बजे का टाइम था ये जब मैं CMH उस बेड पे उठा. तो फ्रॉम देयर ऑन जनाजों का एक जो स्टार्ट हो गया टाइम. 8:30 बजे हमारे जो इस्लामियात के टीचर थे मेरे, उनका जनाजा था.
So I asked the driver to come up और वो आया और we started going to the funeral processions. यहाँ पे मतलब पेशावर की एक अजीब कैफियत उस दिन मुझे देखने को मिली. वहाँ गलियों से ज़्यादा कब्रिस्तान आबाद थे. किसी कब्रिस्तान के अंदर 20 कब्रें बन रही हैं, किसी के अंदर 25 कब्रें बन रही हैं, किसी एक मोहल्ले से 3 जनाजे उठ रहे हैं, किसी से 4 जनाजे उठ रहे हैं. इट वाज chaos at its peak. And I remember like उस वक्त जिस गली में भी जाते थे वहाँ टेंट लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो लाश रख कर बैठे हुए हैं. So it was very difficult to go through that entire process. तो 3 से 4 जनाजे पढ़ने के बाद I lost sight of it and I couldn't process it anymore. तो my father took me back to the house. तो तकरीबन रात 11 बज चुके थे जब मैं वापस घर गया. तो घर जाते साथ ही like I just couldn't rest on the bed. And I remember waking up in the middle of the night, तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था. दरवाज़ा खोला randomly and I walked towards my best friend's street. वो मेरे घर के करीब ही रहता था. I just randomly started moving up and down in the street, जहाँ बैठकर हम पानी वगैरह पिया करते थे, स्टडी किया करते थे, बाहर ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर बैठकर गपशप लगाया करते थे. तो उस जगह पर बस I continuously started walking. तो सुबह फजर का टाइम हो गया and I could not tell time क्योंकि मैं सिर्फ like I was in that memory and I just could not process it. तो I remember सुबह जब फजर का टाइम हुआ तो मेरी सुजुकी में एक बच्चा जाता था. तो he looked at me and he realized कि it's me. So उसने मुझे देखा and like I was shivering and like I was all blue. तो वो मुझे अपने घर लेकर चला गया. And I remember his mother was a very kind woman. उन्होंने like she offered me coffee and calmed me down. तो मैं तकरीबन कोई ऐसे 2 घंटे उनके घर में बैठा. सुबह 5-6 का टाइम हो गया. तो आई रिमेंबर जैन्स फ्यूनरल प्रोसेशन वाज अराउंड 11. तो मैम ताहिरा काजी जो हमारी प्रिंसिपल थी उनका भी जनाजा था. तो सुबह 8 बजे से दोबारा दूसरे दिन में भी जनाजे जो हैं वो स्टार्ट हो गए. तो फिर उनके घर से निकला और जनाजों की दोबारा वो जो एक चल रही थी उसके अंदर शामिल हुआ. एंड आई रिमेंबर लाइक इसी दौरान 11-11:30 का टाइम हुआ एंड जैन्स फ्यूनरल जो उसका वो था वो स्टार्ट किया गया. तो here is where I find myself to be a very unlucky person because I could not bury my best friend. I could not see his face and I was such a bad friend कि मैं उसके आखिरी लम्हों के अंदर I could not even stand in the first row and see him through to the other side. जब ये हुआ तो उस वक्त सिर्फ एक ख्याल था दिल में कि इसकी माँ मुझे देखकर अपने खुदा से उसका ईमान डगमगा ना जाए और वो कहीं ये ना सोचे कि आकिफ वापस आ गया और मेरा बेटा वापस नहीं है और वो अपने अल्लाह से अगर ये सवाल करे. तो मैं नहीं चाहता कि उस माँ का जो दिल है वो इस हद तक ख़राब हो. तो मैं खामोशी से अपनी गुड बाय कहा दोस्त को और वहाँ से निकल गया. फ्यूनरल्स को प्रे करते करते तकरीबन वो दूसरा दिन भी गुजर गया और इतनी ही देर में I found myself in the middle of a situation जहाँ पे the international media was to be given interviews and stuff. तो I was out around the college building उस वक्त and वो फिर एक interviews की जो है वो start हो गई. But my father did not want to expose me too long to the college, so like they shifted me to Islamabad and from there on the journey changed into more of a mental trauma that I was carrying. 17 दोस्तों को कब्र में उतारना, अपने टीचर्स को कब्र में उतारना महज बात करने में बहुत आसान लगता है. एक जुमले में जब मैं ये बोलता हूँ कि 17 दोस्तों को कब्र में उतारा तो शायद वो जुमला भी उस बात को कैप्चर नहीं कर पाता बिकॉज उन 17 दोस्तों को उनकी कब्र में उतारने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि अपनी जिस्म के अपनी रूह के 17 टुकड़े ज़मीन के 6 फुट नीचे दबाए. तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था उस तमाम जिसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम के अंदर से निकलना. आई थिंक इट स्टार्टेड टू डॉन अपॉन मी एट दैट पॉइंट बिकॉज आप शुरू में तो आप कॉम्प्रहेंड भी नहीं कर पाते इतनी बड़ी ट्रेजेडी को. और मैं भी लाइक आई वाज नो डिफरेंट बिकॉज सब कुछ करने के बावजूद इवन इफ आई हैड केप्ट माय विट्स अबाउट इट सून बिकेम ऑब्वियसली क्लियर दैट जिस तरह मैं सोच रहा था या एंटिसिपेट कर रहा था the trauma had affected me on a very deep level. The people around me, of course, I remember उस वक्त उस हादसे से पहले लोग जो है वो गुड तालिबान और बैड तालिबान की एक डिस्कशन किया करते थे. I remember the Pakistani society standing up and saying, we don't want this anymore. I remember the civil society reacting up to it and saying, okay, this is the last line that they have crossed.
और उसके बाद फिर आर्मी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, वी ऑल सॉ टू दैट. The army then started the military operations and was initiated by the then army chief General Rahil Sharif. And I remember like जब college open हुआ 12 जनवरी को, तो General Rahil Sharif, he wasn't in uniform, he was standing in a black suit and he had his head bowed down और वो मतलब नजरें नहीं मिला पा रहे थे बच्चों से. And I remember him saying this कि I want to make sure कि इसके बाद जो कुछ भी होने जा रहा है, I'll make sure that these kids, इन्होंने जो sacrifice किया पाकिस्तान के लिए, it does not go in vain. And then the military proved itself. जिस तरीके से फिर कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ने effectively terrorism को push back किया. लेकिन यहाँ पे फिर एक जो नया डिलेमा था वो शुरू होता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी 20 सालों एक 20 साल हमने देखी एक जंग, लेकिन इस तरह की जंगें जो है वो गोलियों से ज़्यादा आइडियोलॉजिकल लेवल पर लड़ी जाती हैं. सो पाकिस्तान इन द पोस्ट 9/11 वर्ल्ड हैड नॉट डेवलप्ड एनी सिक्योरिटी पॉलिसी. तो पाकिस्तान के अंदर फिर नेशनल एक्शन प्लान बना जिसके तहत गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव्स लिए और सिक्योरिटी जो है वो उसको बीफ अप किया गया. तो इन तमाम चीज़ों से एक मिला जुला जो हमें नज़र आया एक एस्पेक्ट वो ये था कि द सोसाइटी स्टूड अप टू द मैलिस दैट वाज टेररिज्म एंड एवरीबडी सेड नो मोर. ऑफ कोर्स जो ट्रॉमा हम कैरी करते थे उसने पर्सनल लेवल पे एक अलग जिसे कहते हैं ना एक इफेक्ट होता है और ऑन द मास लेवल एक डिफरेंट इफेक्ट होता है. तो पर्सनल लेवल पे मेंटली आई थिंक ऑल ऑफ अस वर शेकन. 12 के बाद जब कॉलेज दोबारा ओपन हुआ तो उन क्लासरूम्स में वापस बैठना, आई रिमेंबर इट बिकेम डिफिकल्ट. एक स्टेज पे तो यहाँ तक भी आया कि क्लासरूम्स में बैठते थे तो पलट कर पीछे जहाँ दोस्त बैठा करता था उस कुर्सी को देखकर रोना शुरू कर देते थे कि यार you know this chair he used to sit on this chair and now he's no longer there. तो वो मेमोरीज थी उन क्लासरूम्स के अंदर जो बार बार रिपीटेटिवली हमें हॉन्ट कर रही थी. वहाँ से जब आगे मूव करना शुरू किया बिकॉज मेरी तो ग्रेजुएटिंग क्लास थी तो मेरे लिए शायद फिर भी थोड़ा सा आसान था उस जगह को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना. लेकिन वो बच्चे जो 8th 9th में थे उनके लिए मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा सिवियर था. And I remember then the college administration changing the classrooms for children so that उनके जो mental associations हैं वो break down now. So all of this like led to a very giant sort of a reaction from within and outside the world as well. I remember even the people outside Pakistan, they stood up, recognized this tragedy as one that was the most inhumane in the history of the world. Or I remember people from all parts of the world coming up to me from across the border even. I received messages from in and out of the country जहाँ लोग अपनी sympathies extend कर रहे थे. And I think पाकिस्तान को तो जहाँ इसने एक जगह पे लाके इकट्ठा किया वहाँ पूरी दुनिया को भी इसने जो है वो इस मैसेज के ऊपर लाकर इकट्ठा किया कि terrorism is something that we really need to fight on a united front. And from there on फिर एक narrative बनाने की एक जो जंग थी वो शुरू हुई. And I also knowingly or unknowingly became a part of it because being a survivor of such a tragedy, the role that I was to play in Pakistan's history was more important and pivotal. कि मुझ जैसा एक बच्चा जो है वो ये बात समझाए कि एक 18 साल के बच्चे को अपने 17 दोस्त कब्र में क्यों उतारने पड़े, पाकिस्तान को ये रियलाइज करने के लिए कि पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है and that there is no good and bad in terrorism, it's all bad. तो उस एक जर्नी को फिर अपने फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई रिमेंबर आई रोट एक्सटेंसिवली. आई रोट अ पोएम दैट वेंट वायरल. इट इवन वेंट इनटू द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द वॉशिंगटन डेली तक वो पोएम पहुंची. पीपल शेयर इट ऑल अक्रॉस इवन ऑन BBC एज वेल. तो उस पोएम से आगे फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा एंड दैट आर्टिकल वाज इन अ वेरी प्रोफाउंड वे इट चेंज्ड माय लाइफ. when the results came in जो second year के थे तो like of course after such a tragedy आप पढ़ना तो दूर की बात है, you cannot even sit straight. तो we could not concentrate and I remember the results were disastrous. तो कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. तो frustration में आकर I started writing and I wrote this article in the newspaper The Nation and that article got viral. वो भी जो है वो नेशनली और इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया. एंड आई रिमेंबर once I woke up in the morning and I saw a tweet
from Bhaktavar Bhutta Zardari, saying that if nobody offers you any place, Zabist is going to welcome you with open arms. And then she reached out to me personally. तो उन्होंने फिर like she guided me to come to Islamabad. और फिर यहाँ आकर I started because ज़ाहिर बात है through the entire process I was mentally affected. तो मैंने सोचा what better way to give back to the community and to the society than to pick up the very subject of psychology and become a mental health professional dealing with my own personal trauma and of those जो मुझसे पहले affect हुए हैं. And from there on, a different journey began. जो मेरा personal trauma था, I feel I dealt with it in two phases. The first one was acknowledging that I was traumatized because as a survivor, आपको समझ भी नहीं आती कि trauma आपकी personality के अंदर कितना embed हो चुका है. अब एक violent इस तरह का जो act है, उसको survive करने के बाद आप उस violence को generalize कर लेते हैं. हम में से बहुत से लड़कों के लिए वो जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, it just played back as an action movie, and we became star cast of our own personal action movie. मैं sometimes अपने दोस्तों को भी तंग करते हुए कहता हूँ, we reacted to it as if we were inside a movie. तो बहुत टाइम लगा उस बात को realize करने में कि वो जिसको हम बार बार as a movie अपने दिमाग में play कर रहे थे, that was a symptom to the PTSD that we had encountered through the trauma. उस ट्रॉमा को एक्नॉलेज करने के बाद आई रिमेंबर कि ज़ाहिर बात है जब आप एक्नॉलेज कर लेते हैं तो यू आर ऑल्सो फाइटिंग विद योरसेल्फ कि अब मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊँ. तो आई रिमेंबर कि कोई सुनने वाला नहीं था. प्रोफेशनल्स के पास जाते थे तो वो सिर्फ ये कह देते थे कि आप या मेडिकेशन ले लें या थेरेपी पर आ जाएं. सो एवरीथिंग प्रूव टू बी इनइफेक्टिव एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे ठीक होना है और इस ट्रॉमा से बाहर आना है तो I really need to look inwards. And I started diving more and more into myself, realizing कि अगर मुझे इस अंधेरे का सामना करने को मिला है मौका, तो इस अंधेरे से ज़ाहिर बात है निकल कर कहीं दूर रोशनी भी होगी. तो उस रोशनी तक पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो I started writing. I think that was the niche that I accepted for myself. और उसने ही मुझे like that writing became therapeutic for me in a lot of senses because जब मैं लिखता था तो मैं वो तमाम बातें कह पाता था जो मेरे दिल के अंदर थी, जो मैं किसी को सामने बैठकर नहीं बोल पाता था. तो वो लिख कर अपने अंदर से वो बातें, वो गुस्सा जो अपने अंदर समेट कर बैठा था, उससे निकाला. I remember the writing also got me into trouble a lot of times, but I knew that it was important for me to get rid of my trauma, and that was the only way. And उसके अलावा like for my anxiety, I picked up a guitar, and I think that also preserved my mental space because अगर मैं वो तमाम वो ना लिखता और ना मैं गिटार उठाता तो शायद अभी भी मैं उसी जगह पर होता जहाँ पे था. तो I think being creative and being able to understand my trauma helped me to overcome all that I encountered. I think सबसे बड़ी चीज़ जो इस वाक़ये के थ्रू मुझे समझ आती है और याद आती है वो ये है कि पाकिस्तान में एक इंसान की कीमत हम 2 लाख रुपए लगाते थे. आई रिमेंबर व्हेन पीपल यूज्ड टू डाई तो हमारी जो गवर्नमेंट्स होती थी वो चेक्स प्रेजेंट करती थी लोगों को जो अफेक्टेड लोग होते थे. तो ज़िंदगी की कीमत जो थी वो बहुत कम लगती थी पाकिस्तान में. पाकिस्तान में 2014 से पहले हज़ारों टेररिज्म के वाक़यात हुए थे. कोई बाप अपनी बेटी की चूड़ियाँ लेने के लिए सड़क पर निकला, वापस नहीं आया. कोई भाई अपने भाई की शादी के लिए तैयारी कर रहा था, वापस नहीं आया. ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर सोचने और समझने की थी कि वो जितने इंसान भी 2014 से पहले मरे उनकी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुई और हमें इकट्ठा कर देने के लिए ये बात काफ़ी थी. हमें नंबर्स की जो एक दौड़ में हम घुमा करते थे ना कि चलो यार ये तो वाकई में 5 लोग ही शहीद हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लोग मारे गए, कुछ नहीं. हमें जो ये नंबर्स का एक प्रॉब्लम पड़ा ना पाकिस्तान में, दैट इज़ व्हाट कॉज्ड दिस डैमेज. जब तक एक हायर नंबर नहीं होता था हमारे दिल के अंदर ना हमारी रूह तड़पती नहीं थी. 1 या 2 लोगों पे तो हमारी रूह बिल्कुल भी नहीं खुलती थी. तो ज़िंदगी की कीमत और ज़िंदगी की वैल्यू जो थी वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम थी. मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यार एक इंसान जो आपके साथ है अगर वो थोड़ी सी तकलीफ गुजार रहा है, अगर आप उसकी तकलीफ में उसका साथ देने में कामयाब हो जाएं,
दैट्स योर सक्सेस। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फिज़िकली या मुआशी तौर पे या जिसे कहते हैं ना किसी तरीके से आप उसको सपोर्ट करें। किसी का साथ देना इस बात का भी जो है ना वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप किसी की बैठकर बात सुन रहे हैं। सड़कों पे के ऊपर घूमने वाले वो लवारिकीन जो अपने लाशों का हिसाब मांगते फिरते थे, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा 2014 के इस वाक़ये की सूरत में हमें नज़र आया, जहाँ पाकिस्तान की रूह को झंझोड़ा गया। और इस रूह को झंझोड़ा इसलिए गया क्योंकि पाकिस्तान को इकट्ठा होना था दहशतगर्दी की इस जंग में। पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना था कि हमें किन लोगों का साथ देना है और हमें अपने बच्चों के लिए कौन सा पाकिस्तान चूज़ करना है। मैं हमेशा ये बात लोगों से बोलता हूँ कि चूज़ अ पाकिस्तान दैट ऑफर्स पीस एंड दैट ऑफर्स मेंटल, जिसे कहते हैं ना, आपको एक मेंटल पीस के साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी का जो तहफ़्फ़ुज़ का जो एक यकीन है वो आपको इस रियासत के अंदर मिले। जब आपको ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जब आपको ये सुकून मिलेगा, तो तब आप उस पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे जो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो आई थिंक उस पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए पहला कदम अनफॉर्चुनेटली हमें 132 बच्चों की जना लाशों पर से गुजर कर मतलब एक पैर रखकर हमें आगे जाना पड़ा। अब यहाँ से आगे पाकिस्तान को ले जाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस बात को अपने दिल में लेकर चलें कि ये 132 लोग, 132 बच्चे और 150 जो पूरे इस वाक़ये के अंदर शहदा थे, इन 150 लोगों ने पाकिस्तान के लिए जो सेक्रीफाइस दिया है, ये सेक्रीफाइस क्या हमें शॉर्ट टर्म में देखना है या लॉन्ग टर्म में देखना है? शॉर्ट टर्म में तो हम 5-10 सालों के लिए शायद आंख बचाकर दूर फिर कहीं और किसी यूटोपिया में अपनी ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन क्या आइंदा आने वाली जनरेशन हमें माफ़ करेंगी? टू विच आई से नो दे वोंट। फॉर दैट टू चेंज हमें अब से अपने पाकिस्तान के कल के लिए काम करना है, जिसमें मुझ जैसी यूथ, आप जैसे तमाम लोग जो इसको देखेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा रोल है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। हमारा रोल है कि हम पाकिस्तान की उस बुनियाद को आगे लेकर चलें जो जिन्ना ने 1947 में रखी। और बेहद ज़रूरी है कि हम जिन्ना के उन प्रिंसिपल्स को याद करके अपने दिल में लेकर चलें, जहाँ उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तमाम लोगों के लिए एक सा है, कि ये पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर किसी के लिए तफरीक नहीं करेगा, कि ये पाकिस्तान तमाम लोगों को इक्वल राइट्स देगा। तो जब हम माशरे के अंदर ये इक्वालिटी ले आएंगे, जब हमारा पाकिस्तान अमीर और गरीब के लिए एक हो जाएगा, जब हमारा पाकिस्तान दो कानून नहीं रखेगा अमीर और गरीब के लिए, तो तभी हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। पर्सनली मैं नहीं चाहता कि दोबारा हम मुझ जैसा एक आकिफ यहाँ पर स्क्रीन पर बैठा हुआ किसी को ये बता रहा हो कि मुझे 17 दोस्तों को कब्र में दफना कर अपनी ज़िंदगी जीने का एक तरीका मिला। मैं हमेशा कहता हूँ जो आपके साथ बैठे हुए लोग हैं, जिनसे हम बात नहीं कर पाते, जिनको हम ये नहीं बोल पाते कि यार वी लव यू, आई थिंक ये बात आम करना ज़रूरी है कि हम एक्नॉलेज कर सकें माशरे में मोहब्बत को। हम नफ़रत करना जानते हैं, हम मोहब्बत खुल के नहीं कर पाते। हम नफ़रत के इतने आदी हो चुके हैं कि हम नफ़रत का इजहार तो खुलेआम पब्लिक में कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत के इजहार करते वक्त हमें हिचकिचाहट भी होती है और माशरा भी हमें गाली देता है। तो आई थिंक पाकिस्तान को इस नफ़रत के लेंस से निकलने की ज़रूरत है और एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारे की रविश को जो है वो दोबारा माशरे के अंदर लाने की ज़रूरत है, ताकि हम वो पाकिस्तान देखें जिसकी बुनियाद जिन्ना ने रखी।